Hello everyone, welcome to this YouTube channel Maths Education. Today we will start our next exercise of chapter 7th integrals. So before starting this exercise, we will discuss about methods of integration. Methods of integration. ठीक है जी, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की सी बच्चे फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सेकंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. And third is integration by partial fraction. Integration by using partial fractions. देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ. That method is already we have done in exercise 7b. ठीक है जी. Now in this exercise we will learn about integration by parts. Integration by parts. So by parts ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ that means ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ. ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ. ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ. ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ integration of second minus integral the sign derivative of first integration of second. ठीक है जी. So the rule is first function as it is जिन्हें है उमें ही रहने देना. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दी की है इंटीग्रेशन कर देनी है माइनस इंटैगरल दा साइन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट दा की करना है आप डेरीवेटिव करना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड. ठीक है जी. सो रूल तो आपको पता लग गया भी जी अपने को दो फंक्शंस गिवन है दैन उन्होंने इंटीग्रेशन करनी किस तरह. नैक्सट क्वेश्चन की है अपने को भी जे फंक्शंस दो गिवन है दैन हाउ टू नो भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ किस तरह पता लगेगा भी फर्स्ट फंक्शन ਆਪਾਂ किनू ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ किस ਨੂੰ ਲੈਣਾ. ठीक है जी. ਉਹਦਾ भी एक रूल है स्टूडेंट्स. रूल की है आइलेट रूल. आइलेट रूल. सो व्हाट इज आइलेट रूल. आइलेट रूल है कि देखो पहला आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ही आप फस्ट एंड सैकेंड फंक्शन लवांगे जिस तरह आप बॉड मास करते सी उस तरह ही. सो व्हाट इज आई है कि बच्चे आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है जी. एल मीन्स लॉग फंक्शंस एंड ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शंस. Most important rule of this chapter or you can say most important exercise. ठीक है जी. algebraic function T means trigonometric functions. E means exponential functions. Exponential functions. So let us take the examples of these functions. So what is inverse trigonometric functions. देखो इन्हां दी examples देखते आपां ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲਾਈਕ
you can say sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, etc. ठीक है जी, these are inverse trigonometric functions. So what is log functions? Like log x plus 5, that are log functions. ठीक है. what is algebraic functions किस तरह दे होंगे? x plus 3, x square, x cube, these are algebraic functions. Or trigonometric functions you know all, like sin x, cos x, tan x, etc. ठीक है जी. And exponential functions are e power x, e power 5x, e power 7x, etc. ठीक है जी. These are the full forms of Euler rule. So देखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਸਟ. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਸਟ ਇਨਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਨੋ ਵੀ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਆਈਲੈਟ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ x sin ਇਨਵਰਸ x dx. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ x ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ sin ਇਨਵਰਸ x. ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ. ਸੋ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ? x ਮੀਨਸ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ sin ਇਨਵਰਸ x ਮੀਨਸ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੇ? ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਫਸਟ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ? i ਮੀਨਸ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦੀ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, e power x cos x dx. देखो e power x cos x ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਆਈਲੈਟ ਰੂਲ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ? cos x ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ e ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸੈਕਿੰਡ. ਬਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਡੂ ਦਿਸ ਰੂਲ. ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, x ਸਕੁਅਰ e ਪਾਵਰ x dx. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ x ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ex. x ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ. e ਪਾਵਰ x ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਖੋ a ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ e ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ? a ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸੈਕਿੰਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਰੂਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੋ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਲੈਟ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7D. So first question is integral x e power x dx and your rule is Euler rule. ठीक है जी. सो देखो फंक्शन देखो इंटैग्रल दे विच x एंड e पावर x
e power x means exponential function and x means algebraic function. So algebraic first आंदा अपने को पहला, this is your first and this is your second. So rule की सी बचे अपने को first function as it is, integration of second minus integral the sign derivative of first into integration of second. ठीक है जी. सो अप्लाई करते हैं रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स कि अभी इसी तरह आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स कि आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा नाल माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. ठीक है जी. सो सॉर्ट आउट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इन ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन अपने को की आती है, ई पावर एक्स ही आ जाती है, माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स डी एक्स. सो ये एज इट इज आ गया एक्स ई दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई दी पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन अगेन आ गई अपने को, क्योंकि अगे की सी इंटैग्रल का साइन सी. दैट मीनस की है भी जो तुम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे एंड सैकेंड की इंटीग्रेशन करोगे, जो भी तुहाडे कोल फंक्शन बनेगा तुसीं उहदा अगेन की है इंटैग्रल करने. सो ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी. दिस इज़ योर आंसर. सो आई रिपीट द प्रोसैस. फर्स्ट ऑफ ऑल की करना है तुसीं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਰੂਲ. ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. दैट वो कितों पता लगेगा अपने को? आईलेट रूल तो फर्स्ट बाय फर्स्ट आएगा कि जिस तरह तुहाडे कोल की है आईलेट रूल के अकॉर्डिंग जिहड़ा फंक्शन तुहाडे कोल पहला पिया दैट इज़ फर्स्ट एंड अनदर वन इज़ सैकेंड. ठीक है जी. हुण जिस तरह अपने कोल क्वेश्चन सी फर्स्ट उहदे च की सी एक्स ई दी पावर एक्स. एक्स ई पावर एक्स मीनस भी एक फंक्शन तुहाडे कोल अलजैब्रिक फंक्शन है एंड सैकेंड फंक्शन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है जी. नैक्सट की है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. हुण आईलेट के अकॉर्डिंग आपां पता भी अलजैब्रिक पहला आंदा एक्सपोनेंशियल बाद च आंदा. ठीक है जी. सो अलजैब्रिक वाले नूं आपां फर्स्ट फंक्शन लै लिया, एक्सपोनेंशियल नूं सैकेंड फंक्शन लै लिया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड. सो अप्लाई करता रूल, दैन अगेन कर दो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव जिहदा करना है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड, सो ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन अपने को की होंदी है ई पावर एक्स ही होंदी है माइनस इंटैग्रल दा साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव की आ गया 1 एंड ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स. ठीक है जी. ये तो एज इट इज़ आ गया माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स इज़ ई पावर एक्स. सो ई पावर एक्स की अगेन इंटीग्रेशन आ गई दैट इज़ ई पावर एक्स प्लस सी. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स साइन एक्स, इंटैग्रल एक्स साइन एक्स. हम देखो एक फंक्शन की है अलजैब्रिक है, एक की है ट्रिग्नोमेट्रिक है. सो अलजैब्रिक पहला आंदा अपने को दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इज़ सेकेंड फंक्शन. सो सोल्यूशन इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड. हम देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ ਐਕਸ. ठीक है जी. माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है जी. सो दिस एम्प्लॉयज़ की बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस की हो गया प्लस, इंटैग्रल के नाल 1 इंटू कॉस एक्स की हो गया कॉस एक्स डी एक्स. दिस एम्प्लॉयज़ वी हैव माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन
साइन एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, रूल याद रखना है भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, x इंटेग्रल x साइन 3x dx। ठीक है जी, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड। अलजेब्रिक पहला आ जाता अपने को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की है, सेकंड फंक्शन हो गया। सो सोल्यूशन इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 3x इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ठीक है जी, माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x द डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेम ही आ गई आही एज इट इज माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx। ठीक है जी, इतों अपने को आ गया माइनस एक्स कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू दिस। देखो 3 की है कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर चो बाहर आ जाएगा इंटेग्रल तो, एंड 1 इंटू कॉस 3x इज कॉस 3x dx। ठीक है जी, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 कॉस 3x दी अगेन इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 plus c and it becomes minus x cos 3x divided by 3 plus 1/9 sin 3x plus c। देखो एक चीज़ होर ध्यान च रखनी है कि जो तुसी इंटीग्रेशन करनी है तुसी कहोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो तुसी सेकंड की इंटीग्रेशन करती इत्थे आपां प्लस c नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हजे स्टेटमेंट दे विच हजे तुहाडी टर्म दे विच इंटैग्रल पिया है। जदों सारे फंक्शनस की इंटीग्रेशन हो जाएगी दैन एक कॉन्सटेंट ऐड कर देना प्लस सी। ठीक है जी, हजे की है इधर इंटैग्रल करन तो बाद तुहाडे कोल इत्थे इंटीग्रेशन पई है, जदों आह वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी दैन तुसीं प्लस सी लिख देना। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th की है जी, इंटेग्रल 2 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स 2 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है जी, हुण तुसीं स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखो, अपने कोल फंक्शनस दो है, एक 2 माइनस एक्स एंड एक साइन एक्स है। सो सोल्यूशन तो पहला मैं की करांगे, इन्होंने सैपरेट कर लाँगे ब्रैकेट्स ओपन करके। पहला 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स dx, दैन सेकेंड इंटैग्रल इज माइनस अगे आ गया एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, सैपरेट कर ले मैं इंटैग्रल, ये सिंपल है हो जाएगा 2 एज इट इज साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि 2 तक कॉन्स्टेंट सी वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपां की कादी करनी है साइन एक्स की। देखो 2 साइन एक्स dx माइनस एक्स साइन एक्स dx। हुण अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है। ठीक है जी, 2 एज इट इज साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स द डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, एक ही बन गया थोड़े को -2 cos x माइनस माइनस, सो माइनस एक बार ब्रैकेट अंदर ही रहने दो, एक ही बन गया -x cos x माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल cos ऑफ x dx। ठीक है जी, -2 cos x एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ माइनस एक्स cos x एज इट इज़ प्लस cos x की इंटीग्रेशन की आ जाएगी अपने को sin x प्लस c। ठीक है जी, दिस एम्प्लॉयज यू हैव -2 cos x माइनस माइनस प्लस x cos x एंड प्लस माइनस माइनस sin x प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी,
सो मेन की है बच्चे अपना रूल है एंड आईलैट भी जिदे तो अपना नूं पता लगेगा भी किनू आपां फर्स्ट लैना है एंड किनू आपां सैकेंड लै रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। सो पहला सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स इंटैग्रल एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है जी। हुण देखो फर्स्ट केड़ा ते सैकेंड केड़ा अपने को अलजैब्रिक पहला आंदा है, एक्सपोनेंशियल बाद च आंदा है। ठीक है जी। दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन। सो रूल इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई दी पावर एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होंगी है माइनस इंटैग्रल दा साइन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर दा डेरीवेटिव 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई दी पावर एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एंड इट बिकम्स एक्स स्क्वायर ई दी पावर एक्स माइनस 2 तुहाडे कोल बाहर आ गया इंटैग्रल तो दैट इज़ कॉन्सटेंट टर्म इनसाइड की रह गया एक्स ई दी पावर एक्स डी एक्स। हुण देखो हजे तक आपां की कीता राजे एक्स वाले क्वेश्चनस किए सी। ठीक है जी। एक्स का डेरीवेटिव 1 हो जाता सी एज इट इज़ मल्टीप्लाई होकर अगेन वो इंटैग्रल हो जाता सी। ये की है तुहाडे कोल फिर दो फंक्शनस आ गए इंटैग्रल के अंदर की है फिर दो फंक्शनस आ गए एक एक्स है एक ई पावर एक्स है। सो अगेन ये की रूल अप्लाई होएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर ई दी पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज़ अप्लाई दिस रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटैग्रल द साइन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरीवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। ठीक है जी। की कितना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस इंटैग्रल द साइन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरीवेटिव 1 ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। ठीक है जी। डी एक्स क्यों पाया बच्चे क्योंकि हजे इंटैग्रल का साइन है। सो एक्स स्क्वायर ई दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन की आ जाएगी ई पावर एक्स प्लस सी। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई दी पावर एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। कोई भी टर्म्स कंबाइन नहीं हो सकती। दैट इज़ द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ द टर्म ऑफ एक्स एंड दैट इज़ विदाउट एक्स। ठीक है जी। सो यू कैन टेकिंग कॉमन तुसीं कॉमन कट सकते हो ई पावर एक्स ई पावर एक्स कॉमन आ गया तो कोल अंदर की रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटेग्रल एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज x and second is trigonometric function. Solution is first function as it is integration of second secant square x dx minus integral the sine derivative of first x the derivative 1 into integration of second secant square x dx. So x as it is secant square the integration की होंगी है तो कोल tan x minus integral as it is 1 into this 1 ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan x ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ x tan x as it is minus integration of tan x is log of cos x plus c. This is your answer. So next question is question number 7 x cos square x integration. So देखो according to Euler rule first function is algebraic
दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन। सो जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करांगे आपां नूं की पता भी cos स्क्वायर x ते अपने कोल इंटीग्रेशन नहीं है, अपने कोल एक फॉर्मूला सी 1 + cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ठीक है जी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहला x इंटू 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। ये की कीता बच्चे आपां हजे आपां जस्ट cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है जी, सो इन सैपरेट करने लई फर्स्ट ऑफ ऑल की करते 2 डिनोमीनेटर चो बाहर आ गया अंडर रूट एज इट इज, ऊपर देखो x + x cos 2x dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इत्थों आपां नूं की पता लगता पिया भी रूल जिहड़ा अप्लाई होएगा इत्थे अप्लाई होएगा। ठीक है जी, एज इट इज़ की है भी cos स्क्वायर x की अपने कोल इंटीग्रेशन नहीं है, सो आपां फॉर्मूला पुट किया है, फॉर्मूला पुट करन तो बाद उन्होंने सैपरेट कर लिया 1/2 बाहर एज इट इज़ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो x dx प्लस 1/2 एज इट इज़ इंटैग्रल x cos 2x। ठीक है जी, ये इंटीग्रेशन सिंपल है, x की इंटीग्रेशन की आ गई तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 एज इट इज़। सो दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x की इंटीग्रेशन करो sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 dx। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/2 एज इट इज़ अंदर की आ गया तो x sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस देखो डिनोमीनेटर च 2 बाहर आ गया इंटैग्रल तो अंदर तो कोल की रह गया 1 इंटू sin 2x इज sin 2x dx। सो दिस इज अगेन x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/2 x sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 एज इट इज sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। So this implies we have x square upon 4 plus x sin 2x upon 4 2 इंटू 2 की हो गया तो 4 हो गया। देखो नेक्स्ट की आया इतने माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 एंड एक 2 बाहर ब्रैकेट दे दैन की बन गए प्लस cos 2x अपॉन 8 प्लस c। So I repeat the process of this question. First of all we all know कि cos स्क्वायर x की अपने कोल की है इंटीग्रेशन नहीं होंगी, दैट्स वाई आप की है फॉर्मूला अप्लाई करता। फॉर्मूला की सी स्टूडेंट्स 1 + cos 2x अपॉन 2। ठीक है जी, 1 + cos 2x अपॉन 2 दैन की किया डिनोमीनेटर च 2 जिहड़ा सी कॉन्सटेंट सी दैट इज सो कॉन्सटेंट जे कोई कॉन्सटेंट हुंदा वो की हो जाता अपने को इंटैग्रल तो बाहर आ जाता है। ठीक है जी, वो इंटैग्रल तो बाहर आ गया, दोनों फंक्शन सैपरेट करते। फर्स्ट की इंटीग्रेशन एज इट इज़ होगी, सेकेंड च आपां की कीता आइलेट रूल लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो अपने को इंटैग्रल x cos 2x sin 4x dx। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है अपने को एक ही है लास्ट एक्सरसाइज की तरह आ गया जिस तरह आप लास्ट एक्सरसाइज दे विच कीते सी क्वेश्चंस। ठीक है जी, सो आइडेंटिटी अप्लाई करने लिए आपको की चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप की कहने भी जो लार्जर एंगल है उन्होंने अगे रख लो, दैट मीनस sin 4x अगे रख लिया, cos 2x पिछे करता। दैन की करना पैंदा सी 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड। ठीक है जी, 2 sin a cos b 2 sin a cos b फॉर्मूला इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। So apply this formula
इंटैग्रल एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़ x एज इट इज़ 2 sin a cos b. Formula is sin a plus b. 4x plus 2x is 6x plus sin a minus b. 4x minus 2x is 2x dx. ठीक है जी. सो 1/2 एज इट इज़. इंटेग्रल सेपरेट कर लिए. इंटेग्रल x sin 6x dx plus 1/2 इंटेग्रल x sin 2x dx. ठीक है जी. सो फर्स्ट इज दिस फंक्शन एंड सेकेंड इज दिस. आइलेट द अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फर्स्ट है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड है. सिमिलरली दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. साइन 6x की इंटीग्रेशन की आएगी माइनस कॉस 6x अपॉन 6 माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेम आ गया माइनस कॉस 6x अपॉन 6 इंटू dx. ठीक है जी. सेम एज इट इज प्रोसेस सेकेंड इंटेग्रल ते करो. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. दिस इज कॉस माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सिमिलरली x का डेरिवेटिव की आ गया 1 आ गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज सेम को माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx. सो 1/2 एज इट इज. दिस इज माइनस x कॉस 6x अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस 1/6 भी इंटैग्रल तो बाहर आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन च की रह गया तो देखो cos 6x dx सेम प्लस 1/2 एज इट इज अंदर आ गया माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटैग्रल तो बाहर आ गया. इंटीग्रेशन का दी रहेगी cos 2x dx. सो 1/2 एज इट इज इंटैग्रल एज इट इज माइनस x cos 6x अपॉन 6 प्लस 1/6 cos 6x की इंटीग्रेशन की आ गई अपने को साइन 6x अपॉन 6. ठीक है जी. प्लस 1/2 एज इट इज माइनस x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस c. सो कंबाइन कर दो. दिस इज माइनस x cos 6x अपॉन 12 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट दे. दिस इज 6 इंटू 6 इज 36. ठीक है जी. सो जी 1/2 ओवरऑल कॉमन कट दें आप. दिस इज 1/2 आउटसाइड हेयर माइनस x cos 6x अपॉन 6 प्लस साइन x 6x अपॉन 36. दिस 1/2 इज ऑलरेडी कॉमन नेगेटिव माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c. दिस इज योर आंसर. ठीक है जी. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਰਮਸ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜੇ 3 ਟਰਮਸ ਸੀ ਉਹ 3 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ 2 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 cos a sin b ਜਾਂ 2 sin a cos b. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 sin a cos b. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੀ ਸੀ sin a plus b plus sin a minus b. then ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sin a plus b and sin a minus b ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ then ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਏ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की है स्टूडेंट्स. इंटेग्रल x स्क्वायर e पावर -2x dx. ठीक है जी. हुण देखो आइलेट दे अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहला कि एक्सपोनेंशियल पहला. एल्जेब्रिक फर्स्ट है. दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन.
So solution is first function as it is integration of second. So e power minus integration of second minus integral the sign derivative of first into integration of second. So after solving this, x square as it is, integration of e power minus 2x, e power minus 2x divided by minus 2, जो दी पावर होंगी वह डेरीवेटिव डिनोमीनेटर आ जाता है। ठीक है जी, पावर कितनी सी -2x, जो इसका डेरीवेटिव किया दैट इज़ -2, वो -2 की डिनोमीनेटर आ गया। माइनस इंटैग्रल द साइन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो एक्स स्क्वायर द डेरीवेटिव 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पावर -2x अपॉन -2 dx, 2 कैंसल आउट, इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर e पावर -2x अपॉन 2, जो डिनोमीनेटर च नेगेटिव सी उन्होंने आप सेंटर च ले आए। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो गया है, की बचिया तुहाडे कोल अंदर x e दी पावर -2x dx, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होएगा। सो दिस एम्प्लॉयज यू हैव माइनस एक्स स्क्वायर e दी पावर -2x अपॉन 2 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e दी पावर -2x अपॉन -2 minus integral the sign derivative of first, x the derivative 1 into integration of second is e power -2x upon -2 dx. So this implies you have minus x square e the power -2x upon 2 plus minus x. So एक बारी ब्रैकेट ओपन नहीं करते आपां, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए। दिस इज माइनस एक्स ई दी पावर -2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ई पावर -2x, ई पावर -2x, ई पावर -2x की मैं अगेन इंटीग्रेशन करती क्योंकि बाहर की सी अजे इंटैग्रल दा साइन सी। नाउ इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर -2x अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस एक्स ई दी पावर -2x अपॉन 2 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ई पावर -2x upon 2 plus c. You can take common from e power -2x from each term. ठीक है जी, otherwise you can leave here. So प्रोसीजर सेम है क्वेश्चंस नूं करन दा, थोड़ा जिहा बस ध्यान नाल करना है भी फर्स्ट फंक्शन केड़ा लेना है एंड सेकेंड केड़ा लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। सो नेक्स्ट इज इंटैग्रल एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर dx। देखो फर्स्ट फंक्शन आपां पता है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉब्लम की आ रही है भी एंगल की है एक्स स्क्वायर है और जो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज किए दैट विल बी इन लीनियर टर्म, जो उन्होंने एंगल की है लीनियर होंगे। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप की करांगे बाहर वाले एक्स क्यूब में तुम ब्रेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। मैं की किया एक्स क्यूब में ब्रेक कर लिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स च, हाँ साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है जी, हुण की किया पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर में जो तुम पुट किया दैट इज 2x dx इज इक्वल्स टू dt, सो x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। सो इंटैग्रल इंप्लॉयज की बन गया अपने को साइन एक्स स्क्वायर मीनस टी, बाहर वाला जो एक्स स्क्वायर सी भी वैल्यू टी आ गई एंड एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन 2। सो 1/2 की ये बाहर आ जाएगा, इंटैग्रल च की रह गया टी साइन टी dt and this is your first and this is second. So apply integration by parts, first function as it is, integration of second sin t the integration minus cos t minus integral the sin derivative of first into integration of second. ठीक है जी, first the derivative that means t the derivative 1 and sin t the integration minus cos t. So 1/2 as it is, this implies you have minus t cos t minus minus plus integral cos of t dt, 1/2 as it is minus t cos t
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट इज sin t प्लस c. दिस इज योर आंसर. ठीक है जी. देन आंसर इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए. सो पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर 1/2 एज इट इज माइनस एज इट इज t दी वैल्यू x स्क्वायर cos ऑफ x स्क्वायर प्लस sin ऑफ x स्क्वायर प्लस c. That is your answer. So next question is question number 11th. So question number 11th is integral x log x dx. ठीक है जी. So check the Eilert rule. First function is log x and second is algebraic function x. ठीक है जी. Solution is first function as it is इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x की इंटीग्रेशन की आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx. ठीक है जी. सो एक ही बन गया अपने को. x स्क्वायर अगे आ जाएगा x स्क्वायर लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक x कैंसल आउट हो गया 1/2 बाहर आ गया. अंदर थोड़े को इंटीग्रेशन की रह गया x dx. x स्क्वायर log x एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 एज इट इज एंड x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. यू हैव x स्क्वायर log ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12. देखो जी 12th की है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th. इंटेग्रल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो सी इट केयरफुली. देखो इस फंक्शन दे विच की है स्टूडेंट्स अपने कोल की है जस्ट एक ही फंक्शन है. ठीक है जी. एक फंक्शन है बट आपां नूं नहीं पता भी आपां सेकेंड किनू लवांगे एंड वी ऑल्सो डोंट नो वट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग. ठीक है जी. लॉग फंक्शनस दी इंटैग्रल्स नहीं किते आपां. सो इसको इस टाइप के क्वेश्चनस नूं किस तरह करना है आपां. इंटैग्रल log of 1 plus x square. This is your first function and this is your second function. की करना है आपां जदों भी तुहाडे कोल एक ही फंक्शन पिया होएगा दैन सेकेंड फंक्शन तुसीं की ले लेना 1. सो मैनूं किवें पता भी फर्स्ट लेना. देखो log आईलेट दे विच log पहला आंदा है. 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन. ठीक है जी. वो की आ जाएगा वो पीछे चला जाएगा. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. अदरवाइज ये चीज़ नहीं पता लग रही भी फर्स्ट किनू लेना है सेकेंड किनू लेना है. देखो फर्स्ट लॉग तुहाडे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. जे तुसीं सेकेंड लेने हो लॉग नो फंक्शन बट दैन प्रॉब्लम अगेन वही आएगी कि भी अपने को सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है. लॉग फंक्शन से की है इंटैग्रल्स नहीं होंगे. ठीक है जी. सो दिस इज़ योर फर्स्ट एंड दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 दी इंटीग्रेशन की आ जाएगी x माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. हम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव 2x इंटू एक ही आया जी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. सो एक्स अगे आ जाएगा एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. हुण इस तो बाद किवें करना रजे जदों तुहाडे कोल इंटीग्रेशन दे विच एक नवां रूल है. देखो जदों इंटीग्रेशन दे विच पावर सेम आ जाती है ऊपर नीचे दैन की करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं उपरले नूं डिनोमीनेटर नाल
डिवाइड डिनोमीनेटर की सी एक्स स्केयर प्लस 1 दैट मीनस 1 नाल डिवाइड करांगे एक्स स्केयर प्लस 1 दिस इज कैंसल आउट एंड दिस इज -1 ठीक है जी। आ डिवाइड करना बच्चे तुसी 10th क्लास दे विच कीता है। सो एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर एज इट इज -2 एज इट इज इनू किस तरह लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ठीक है जी। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर dx। So next is x log of 1 plus x square as it is -2 as it is इंटेग्रल से देखो 1 प्लस माइनस -1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 और यू कैन से 1 प्लस एक्स स्क्र ठीक है जी। ये एज इट इज़ आ गया एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र -2 इंटीग्रेशन कर दो अप्लाई 1 दी इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटैग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 dx एक आधी इंटीग्रेशन है बच्चे tan इनवर्स एक्स दी प्लस सी सो ओपन ब्रैकेट एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र -2x माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी दिस इज योर आंसर। सो है कि फंक्शनस दे विच देखो एक तो लॉग फंक्शनस आ गए जिन्हां दी इंटीग्रेशन नहीं हुंदी ठीक है जी। एक आपां होर फंक्शनस कीते है भी जिन्हां दी इंटीग्रेशन नहीं हुंदी किहड़े फंक्शनस है वो इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस वो साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन नहीं की कॉस इनवर्स की सो लाइक दी आ तीनों 6 जिहड़ियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज है इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज इन्हां दियां की है अपने कोल इंटीग्रेशनस नहीं हुंदियां। सो इन्हां दी इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं नैक्सट क्वेश्चन वो देखो जिस तरह लॉग वाला किया आप इंटू 1 लैके उस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस करांगे एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज इंटैग्रल एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स dx ठीक है जी। ये तक ही अपने को दो फंक्शनस पे है सो अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फर्स्ट आ गई। सो सोल्यूशन इज अप्लाई दिस रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सो एक्स की इंटीग्रेशन की आ गई एक्स स्क्र बाय 2 माइनस इंटैग्रल द साइन डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट सो कॉस इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव की होंगे अपने को -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्र इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सो एक्स की इंटीग्रेशन की आ गई एक्स स्क्र अपॉन 2 dx ठीक है जी। देन एक्स स्क्र अगे आ जाएगा एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बार इंटैग्रल से देखो की रह गया एक्स स्क्र अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्र dx। हुण देखो मैं तुहानूं की कहा सी भी जे पावर उपर नीचे सेम आ जाती है दैन आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं पर डिवीजन एल्गोरिथम लई की है ये तो डिनोमीनेटर है जिहड़ा तुहाडे कोल √च है सो जे डिनोमीनेटर √च है दैन आप डिवाइड तो कर नहीं सकते ठीक है जी। रूल देखो अगे की है एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटैग्रल मैं की करूँगी उपर पहला तो प्लस नूं की लिख सकती हैं माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं माइनस माइनस की हो जाता है प्लस वो माइनस इंटू माइनस लिखे एक माइनस इत्थे लिखता एक माइनस इत्थे लिखता ठीक है जी। जो दोबारा भी देखेंगे वो माइनस माइनस की बन जाएगा प्लस ये क्यों किया है डिनोमीनेटर नाल सेम करने लई। इस तो बाद मैं की किया 1 ऐड एंड 1 सबट्रैक्ट डिवाइडेड बाय एज इट इज सो नोट दिस स्टैप फर्स्ट ऑफ ऑल की किया अपने को नीचे एक्स स्क्र नैगेटिव का सी सो मैनू इत्थे माइनस चाहिए सी माइनस लई मैं की किया प्लस नू ब्रेक कर लिया माइनस इंटू माइनस अगेन 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट ये क्यों किया हुण देखो एक्स स्क्र कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 हेयर यू कैन चेंज देखो 1 माइनस एक्स स्क्र नू लग कर लो डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्र dx -1 नाल अलग कर दो देखो क्यों किया हुण आपां ये रीजन देखो 1 माइनस
अपने कोल की है बच्चे इंटैग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जे मैं ये नाल रैशनलाइज कर दी हाँ देखो ये की बनता है, ऊपर की आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये बन गया तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट द स्क्वायर। सो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसल आउट हो गया। की रह गया टर्म कली अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटैग्रल अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, शो करने की जरूरत नहीं है, तुम साइड पर सॉल्व कर सकते हो। दिस इज माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटैग्रल 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 एज इट इज। ठीक है जी, सो यदि इंटीग्रेशन अप्लाई करांगे आपां इंटीग्रेशन की है बच्चे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी इंटीग्रेशन की अपने को x/2 अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ माइनस ए स्क्वायर बाय 2 अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, so x/2 under the root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। ठीक है जी, so apply this integration minus 1/2 as it is, a is 1 and x is x। ठीक है जी, x/2 under the root of 1 minus x square plus a square by 2, a square is 1 sin inverse x plus 1/2 as it is, and integration of this is 1 upon integral a square minus x square dx is equals to sin inverse x by a plus c, sin inverse x plus c। ठीक है जी, now it becomes opening these brackets x square cos inverse x as it is minus x by की हो जाएगा 2 into 2 4 x square cos inverse x upon 2 minus x upon 4 under the root of 1 minus x square plus minus minus 1/4 sin inverse x plus 1/2 sin inverse x plus c। this is your answer and you can take joining this, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਟੇਕਿੰਗ LCM। so next question is question number 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंटेग्रल कॉट इनवर्स एक्स dx। देखो कॉट इनवर्स एक्स dx मतलब एक ही फंक्शन है। सो आपा की क्या सी सैकेंड फंक्शन किनू ले लांगे 1 नू। सो सोल्यूशन इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड 1 दी इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटेग्रल दा साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो कॉट इनवर्स दा डेरिवेटिव की सी बचे अपने को -1 upon 1 plus x square। so -1 upon 1 plus x square into 1 the integration x dx। so ये x अगे आ जाएगा x cot inverse x माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल x upon 1 plus x square। देखो एक होर की रूल है इंटीग्रेशन दे विच, जे नीचे वाले दा डेरिवेटिव ऊपर पिया होवे दैन लॉग ऑफ डिनोमीनेटर आ जाता है। इंटैग्रल जिस तरह मैं ले लिया cos x अपॉन sin x। ठीक है जी, जिवें तुसी tan x की इंटीग्रेशन करनी है मान लो। आप की कह रहे हैं
भी जे नीचे वाला डेरीवेटिव उपर पिया दैट मीनस की है लॉग ऑफ डिनोमीनेटर तुहाडे कोल आंसर आ जाता है। सो इत्थे की है नीचे वाला डेरीवेटिव है कि डिनोमीनेटर का की आना 2x आना है। सो 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड की आ गया नीचे वाला डेरीवेटिव उपर पिया दैन आंसर विल बी इंटैग्रल विल बी लॉग ऑफ डिनोमीनेटर प्लस c। पॉइंट टू बी नोटेड ये चीज़ जी चीज़ है बच्चे ये फॉर्मूला बहुत जगह पर यूज़ होएगा भी जो तुहाडे कोल डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव न्यूमरेटर च पिया दैन लॉग ऑफ डिनोमीनेटर आ जाता है। ठीक है जी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दैन यू कैन डिस्कस विद मी इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।